continuing our 500 series important question for UPSC examination 2024. Okay, so we have seen 6 questions before. Now we're going to start from the 7, and it's a monetary policy committee. Okay, which of the while deciding the repo rate, monetary policy committee may keep in the mind the following factors. अब ये 3 factors आपके सामने हैं, and you can see which all 3 factors the monetary policy committee determine, right? So this is very again kind of you have to think and you have to answer. Direct तो नहीं है. So if you just directly go to the rather than giving you my explanation, I will just take you to the RBI governor interview. Okay, and I have taken this question from his interview, right? So it says here the MPC decisions continue to be guided by the domestic factors. There are 2 components in the MPC framework. One is inflation, and the second is the requirement of the growth in mind, right? So the first and second statement are correct. Now the decisions are based on these twin objectives. What are the twin objectives? The inflation and the growth, with the premise being given to the price stability. The currency market fluctuation, depreciation, appreciation of the rupee is not a factor of consideration in C. Now you see here, okay, this is wrong. Third is wrong. This is wrong, and the first and second is correct. So you have to थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, and you have to proceed. Now, if it is the next question, with respect to Electricity Act 2003, consider the following statements. Now, it is a comprehensive legislation replacing this act, this act, this act. अभी ये such statements don't think they are not important. आप 2019 का पेपर देखिए 19 और 20. There is one question about the FSSAI, okay, food regulatory, FSSAI, okay. So the question has come, such questions, such statements have come have in the past, right? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की कम से कम लाइक सच स्टेटमेंट्स नॉट डायरेक्ट, तो कम से कम आपको जो बता रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो 9010 1948 ये डायरेक्टली इनके इंट्रोडक्शन में लिया गया. एंड वेन एवर सच स्टेटमेंट्स कम, जस्ट मार्क इट करेक्ट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस डेलिबरेटली आई कांट फ्रेम, राइट? एनी एग्जामिनर कांट फ्रेम डेलिबरेटली. बहुत रेयरली होगा. इफ ही वांट्स कि एग्जाम आप क्वालिफाई करो ही मत, देन ओनली विल आस्क यू सच स्टेटमेंट्स. अदरवाइज बहुत कॉमन सी सेंस रखना है आपको. If such things are coming here, you have to mark it correct. Okay, it has been amended twice since its inception, and the appellant tribunal against the order of CERC and the same. Okay, मतलब CERC and पेट्रोलियम नेचुरल गैस का रेगुलेटरी बोर्ड का appellant ट्रिब्यूनल जो है वो सेम है. Okay, now if you go to the solution, answer is D 1, 2 and 3 all are correct here. Okay, now if you see इसमें कोई न्यूज़ का तो मतलब रोल नहीं है, न्यूज़ का कुछ भी रोल नहीं है. ओके, नाउ इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन रिप्लेसिंग फर्स्ट स्टेटमेंट जो था. ओके, नाउ रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. किसी भी स्कीम्स पॉलिसी का इंट्रोडक्शन पढ़ते ही एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करना ईजी हो जाता है. डोंट डायरेक्टली रीड द ऑब्जेक्टिव. ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो आया कहाँ से, पर्पस क्या था. तो इफ क्वेश्चन सम रैंडम स्टेटमेंट्स ऑल्सो कम, आप उसको करने के उसमें रहोगे. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब आप देखो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर. थर्ड स्टेटमेंट इज सेम. आप देखो यहाँ 2007 में डेजिग्नेटेड द अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर दिस पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऑल्सो. सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ बुद्धा ऑफ द प्रेजेंट. अब आप देखो कि 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शंस. इसमें से बुद्धा ऑफ द प्रेजेंट किसे कहते हैं? दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको इजी रहेगा. ये 3 इमेजेस हैं, जस्ट ट्राई टू लर्न इट टुडे. इट्स अ बुद्धा ऑफ द पास्ट, दीपांकरा. शाक्य मुनि इज द प्रेजेंट एंड द मैत्रेय इज द बुद्धा ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये इमेजेस याद कर लो एंड कुछ आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, INC. This is again important. This is, don't think these questions are not important. INC founded, इतना तो सबको पता है. कहाँ पर हुआ था, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, मैं कह रहा हूँ ना, अगर उनको टफ बनाना है यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. दैट्स व्हाई आई से गोल्डाइड एकेडमी पे थोड़ा सा आप कुछ एक्सट्रीम लर्न करोगे 100%. जो बेसिक्स आप पढ़ रहे हो, एवरीवन इज रीडिंग फ्रॉम द मैगजीन्स इन द मार्केट. दिस इज अ यूनिक थिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट. मोर यू लर्न द मोर इजी इट विल बिकम टू एलिमिनेट द आंसर. सो आप थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा अलग लर्न करने का कोशिश करो. Okay, now A.O. Hume, one of the founding fathers of the INC, was also considered the father of
Indian ornithology, and Annie Besant was the first woman president of the INC after exam. तो ये दोनों तो, ये थर्ड स्टेटमेंट तो इट्स कॉमन, यू विल फाइंड फर्स्ट और सेकंड का लर्न करना है यहाँ पे आज आपको, एंड जस्ट ट्राई टू लर्न, ठीक है, इनको लर्न करो. नाउ इफ यू गो टू द सोल्यूशन, आंसर इज बी 2 and 3. द फर्स्ट इज इनकरेक्ट. इट्स अ गोकुल दास तेजल संस्कृत कॉलेज. ओके, तेजपाल संस्कृत कॉलेज. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यही आपको करना था. Other second statement, third statement are correct. So just a factual thing, just try to remember. Okay, now we're moving to the next question. Moving to the next question, if you see here, इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर. अभी आप देखो क्वेश्चंस में टैमरिंड है ना, नाइजर सीड्स, पिजन पी, अलग अलग क्रॉप्स दे आर टेकिंग एंड दे आर आस्किंग. हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी उठा सकते हैं, दिस नॉट बिग डील इन दैट. यू शुड बी नोइंग. बनाना तो इट्स लाइक इंडियन थिंग, तो आपको पता होना चाहिए सच थिंग्स. इंडियनाइजेशन करना पड़ेगा आपको यूपीएससी का. जो क्वेश्चंस हैं, नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक कि मोदी गवर्नमेंट हैज कम इनटू द पावर, ही वांट्स आत्मनिर्भर भारत, अबाउट इंडिया, एवरीथिंग डू इन इंडिया. इफ ही वांट्स द कमिंग एस्पिरेंट शुड नो मोर अबाउट इंडिया. ऊपर की चीजें नहीं उनको पसंद है, राइट? सो ही वांट्स, तो इट्स अ मैसेज and the questions are framed by the UPSC chairman, but the message is very clear. Students should know more about India before entering into this zone, right? So banana producer, India export share is currently just 1% of global market. The first statement says it's a banana producer, or second statement just 1% only. There's no minimum support price for the horticulture crops. तो आंसर इज सी, ऑल थ्री. अब आप देखो यहाँ पे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिनिमम नहीं देते, बिकॉज इट्स खराब हो जाएगा क्रॉप्स, राइट? यू कांट स्टोर इट, राइट? सो इफ यू जस्ट सी हियर, taken from the PIB, it's a, despite the world largest banana producer, India exports share is just 1% of global market. It's a statement directly taken from the PIB. Okay, now if you see here, it's a banana export का अगर आप देखो यहाँ पे, despite being the world largest banana producer, India export, this I have already asked you, and there is a no minimum support price for the horticulture crops. Okay, ये भी important है. Now next question will shift to the aims, right? aims के बारे में थोड़ा लर्न कर लेते हैं. अगेन इट्स इंडिया, इंडिया में एम्स इज इंपॉर्टेंट रोल, न्यू एम्स आर सेटिंग अप, सो थोड़ा सा आपको एम्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? नाउ इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट सेज द एम्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 अंडर दिस एक्ट. ओके, एम्स कैसे एस्टैब्लिश होता है, यू शुड नो द बेसिक थिंग. अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना, प्रॉब्लम इज यू आर फार अवे फ्रॉम द यूपीएससी क्वेश्चंस. आप बहुत रैंडम, लाइक superficial questions you are practicing. This is actually creating a problem. I don't know how you will solve it, but yes, I am trying to. AIMS conduct research training programs in the medical and paramedical college, both levels. Currently there are 12 AIMS operational in India. Numbers भी somehow पता होना चाहिए. Now operational word use किया है because so many AIMS are in the process, in the construction mode. तो आपके एग्जाम आते आते शायद एक एम फिर आ जाए, एक एम्स फिर आ जाए, तो आपको उसके लिए घबराने का नहीं है. उतना डिफरेंस नहीं पूछेंगे एग्जामिनेशन, राइट? तो इफ यू गो टू द आंसर, इट सेज बी ओनली 2. तो आंसर क्या है देखिए आप, ऑल इंडिया एम्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, 1952 में ये हुआ था. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देयर इज अ काइंड ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल दोनों फैसिलिटीज है, और ये एक्ट ये भी सही है. एंड एज ऑफ जनवरी 2023, 20 इंस्टीट्यूट्स, मैंने क्या पूछा था, 12, राइट? सो एक डिफरेंस रहेगा 10-20 नंबर का. ऐसा नहीं है कि 12 है तो 13 आपसे पूछेंगे. सो मेक श्योर आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए हाउ मेनी, बिकॉज जहां भी जा रहे हैं मोदी सिंह वी आर सेटिंग अप एम्स, वी विल सेट अप एम्स. तो कितना है, इट इज वेरी वेरी जनरल स्टेटमेंट, यू शुड नो. ठीक है, नाउ next question is about the new aims. अच्छा, new aims are set up in India under which scheme? Okay, एक scheme है, under such schemes aims are set up. Okay, now if you see here, under प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना टू, it was in news on 5th December, right? It's a current your examination, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, right, this year. तो आप देखो यहाँ पे कि सेटिंग ऑफ एम्स अंडर विच स्कीम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. सो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू सी हियर दे आर 4 ऑप्शंस, एंड ऑल 4 ऑप्शंस में से आंसर क्या है, बी. ठीक है, तो इसका भी पता होना चाहिए कि व्हाट स्कीम इज अबाउट. सेटिंग ऑफ द एम्स इज अंडर दिस योजना. ठीक है, नाउ
We'll again learn DRDO in the next statement, okay, in the next video. So abhi ke liye itna hi. Thank you so much. We'll soon see you for the next video.